میں گزارش کر رہا ہوں جمعیت علماء ہند کے انتہائی بے لوث اور مخلص خادم ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی ناظم عمومی جمعیت علماء ہند، اور میں اپنی اس حیرت کا اظہار بغیر کسی تعریف کے کر رہا ہوں کہ صحت سے متعلق اتنے عوارضات کے باوجود، اتنے طویل دورانیے کے اسفار اور اتنا دواؤں کا استعمال، یقین مانیے دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ناظم عمومی صاحب کو صحت، سلامتی والی عمر، برکت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے آپ حضرات نے جس محبت کا ثبوت دیا ہے تو آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے۔ جمعیت علماء وسط یو پی کا صوبائی مشورہ تھا، کل سے ابھی تک چلا، آج تک مدارس کے حوالے سے یہ کنونشن ہے، آخری نشست ہے۔ بہت ساری قیمتی گفتگو اور بہت ساری معلومات آپ کی خدمت میں زبانی پیش کر دی گئی ہیں اور تحریر آپ کو دی جا رہی ہے، لیکن یہ ایک دو روز کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ تحریر آپ کو دی گئی، آپ بھول بھی چکے ہوں گے، اس سے پہلے بھی دی گئی، اس سے پہلے بھی تقریریں ہوئیں، اس سے پہلے بھی مجلس عمل بنایا گیا، اس سے پہلے بھی دورے ہوئے، آنا جانا ہوا۔ میرے بھائیوں، ظاہری اور باطنی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے دونوں پہلو ہیں، ظاہری کوشش بھی ہے اور باطنی کوشش بھی ہے۔ ظاہری اعتبار سے تیاری ہے، باطنی اعتبار سے رب سے مانگنا ہے۔ اگر آپ 1857 کے حالات کے بعد کا جائزہ لیں گے، 1866 تک ہمارے اس ملک میں داڑھی اور ٹوپی بغاوت تھی، یہ بغاوت کی علامت تھی۔ کسی جرم کی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی، پکڑو اور پھانسی دے دو۔ حالات ایسے تھے کہ بنا نماز جنازہ کے جنازے کو دفنا دیا جاتا تھا، جلتی ہوئی تندوروں میں ڈال دیا گیا۔ ایک دو لوگ نہیں، ہزاروں نہیں، 2 لاکھ کے قریب لوگ شہید کیے گئے، لیکن انہی حالات میں 1866 میں چند بچے کچے اکابر دیوبند کی سرزمین پر ایک انار کے درخت کے نیچے جمع ہوتے ہیں، ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ پڑھانے والے استاد ملا محمود، پڑھنے والے شاگرد محمود، اور ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی نے جو تربیت کا نظام بنایا تھا، اور پھر اوپر حضرت حاجی صاحب اور حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں ہندوستان واپس کیا تھا کہ جاؤ اور عقیدے کی پختگی، ایمان کی مضبوطی میں چھوٹے بچوں پہ کام کرو۔ حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت پر ہندوستان بھیجا گیا واپس، کہ عقیدے کی پختگی اور ایمان کی مضبوطی، اور حاجی امداد اللہ صاحب کا ہاتھ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالت خواب میں بشارت فرمائی اور ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو سیدنا حضرت علی اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اکابر کے پہنچتا۔
बीच में हजरत मुजद्दिद साहब का मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर आता है, वो भी आप देख लीजिए। फिक्र शाह वलीउल्लाह और आपके खानवादे की फिक्र और तवज्जो, फिक्र वलीउल्लाही, इन दोनों के मजमूए का नाम देवबंदियत है। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र और हजरत मुजद्दिद साहब के कारनामों और हदीस, कुरान और सुन्नत पर अमल करने का नाम देवबंदियत है, जो हमारे अकाबिर ने इख्तियार किया। चुनांचे उन्होंने मदरसा बनाया और मदरसा बनाने के बाद काम शुरू किया और एक एक आदमी ने अपने अपने एतबार से अपने शागिर्दों को ऐसा तैयार किया कि पहाड़ जैसे लोग बना के पेश कर दिए। अंदरूनी दुश्वारियों पर बात चल रही है, जाहिरी एतबार से आप जंग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह कामयाबी भी देंगे। रमज़ानुल मुबारक में जमीयतुल उलमा हिंद के दफ्तर में सुफरा मदारिस के जिम्मेदारों की बहुत बड़ी तादाद होती है। पूरी जमीयतुल उलमा कोई और काम नहीं सिवाय मेहमानों की खिदमत के लिए रमज़ान मुबारक में। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मस्जिद में खड़ा हूँ, इशा की अजान होती है, लोग झोला लेके बाहर चले जाते हैं, तराबी पूरी होती, लोग अंदर आ जाते हैं। किस मदरसे के लोग हैं? कौन सा मदरसा चला रहे हैं? सहरी में 2 बजे से बैठ जाते हैं और फजर की नमाज में नहीं आते, जिनके लिए हम लोग महीने भर खिदमत करते हैं और खालिस लिल्लाह रकम से खिदमत करते हैं और जमीयतुल उलमा का पूरा स्टाफ उनकी खिदमत में लगा रहता है। तो क्या मदारिस इसीलिए बनाए गए थे? हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा के जेल की जिंदगी और सोबतें इसी दिन के लिए बर्दाश्त की थी और हम उनकी औलाद कहलाते हैं कि हम हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की जानशीन हैं। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो सोरिश काश्मीरी ने कहा था, गर्दिशे दौरा की संगीनी से वो टकराता रहा और माल्टा में नग़्मे महरो वफा गाता रहा। सुन्नत के मुताबिक हमारी नमाजें नहीं, हमें पता भी नहीं है कि जुमे को फजर में कौन सी सूरत पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। आप देख लीजिए, चले जाइए और नमाजों में शरीक हो जाइए। अकाबिर पर बस ज़बानियाँ हमारी आम हैं, हम तबसरे करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे लिखते रहते हैं। वो तो चले गए अपनी कब्रों में, अल्लाह ताला उनको उनके एतबार से नवाजेगा। हमें अपने आप को दुरुस्त करना है बातिनी एतबार से। एक वक्त ऐसा था कि ट्रेन में चलने वाले मुसाफिर, जेल में रहने वाला साथी ये लिख के दे रहा है कि अगर मौलाना हुसैन अहमद मदनी यहाँ रहे, मैं उनके साथ रहा तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, लिहाजा बैरिक बदल दिया जाए और ट्रेन में सीट बदल दी जाए। आज लोग इतने मुतनफिर हो गए कि हमसे नफरत कर रहे हैं, हमें देखना पसंद नहीं करते। क्या वजह है आखिर? कहीं न कहीं हम लोग भी ज़ातियों दुश्वारियों मुब्तला हैं। तो तरबियत का निज़ाम अपने यहाँ आपको अकीदे और मजहबी एतबार से, हर एतबार से लाजिम कर लेना, उसे दुरुस्त करना है। बाकी जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी जा रही हैं और लड़ी जाएंगी इंशाअल्लाह। तो जो निज़ाम बनाया गया है, जो निज़ाम आपको दिया गया है, उस निज़ाम को आप लेकर के जाएं। आप पढ़िए शेख महमूद आफंदी को, तुर्की में 18 साल तक एक मस्जिद में थे, एक आदमी भी नहीं आया उनके पास। मेहनत करते 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 इतनी मेहनत की कि आज पूरा तुर्की उनका शागिर्द है, मुरीद है। फिर अभी जब चेचनिया और बोस्निया पर लाल झंडों का कब्जा हुआ और आखिर में लोग कुरान मजीद को भूल गए, देख के पढ़ना मुश्किल हो गया, ज़बानी याद था, तो उन्होंने तरीका इख्तियार किया तो जंगलों में चले जाते थे और खेत में रह करके बच्चों को याद कराते थे। और बहुत सारे इलाके में, अलजायर में मौलाना अब्दुल हमीद बिन बादिस और मौलाना बशीर इब्राहिमी ने जिस अंदाज से कुर्बानियां दी, कुरान मजीद वहां 200 साल के बाद। तो आप सब हजरात मदारिस के जिम्मेदार हजरात हैं, मदरसों से वाबस्ता हजरात हैं, फिक्र दामनगीर है, फिक्र की बुनियाद पे यहाँ जमा हुए हैं।
सब्र और अज़्म के साथ खड़ा होना, शुक्र हर हाल में जरूरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए पर सब्र, और अल्लाह ताला ने ईमान दिया उसकी बुनियाद पर अज़्म और हौसला। अकाबिर की जिंदगियां हमारे सामने मिसाल, बहुत दफा ऐसा हुआ है कि अकाबिर के साथ ज्यादतियां हुई। बहुत मशहूर वाक़या हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का है। साजिश करने वाले आखिर में नाकाम हुए और इमाम साहब पर कोड़े लगते रहे। वो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। आखिर में नतीजा निकला कि जो लोग साजिश कर रहे थे उन्हें उन्हीं की हुकूमत ने फांसी दी, और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के नाम अल्लाह ताला ने क़यामत तक बाकी रखा और बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये आजमाइश की घड़ियां आती हैं हमें आपको दुरुस्त करने के लिए। आज भी वो आजमाइश की घड़ियां हैं हमें आपको तैयार होने के लिए। तस्हीह नियत बेहद जरूरी। और अपने आप को मैंने खुद से सुना जमीयतुल उलमा के दफ्तर में, हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब आज़मी शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने इरशाद फरमाया। हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी भी मौजूद थे, मौजूदा मोहतरम दारुल उलूम देवबंद, और भी अकाबिर की मौजूदगी में, कि आज के ज़माने में मदारिस के फारिग होने वाले उलमा को किसी न किसी अपने बड़े से बैत होना, उनसे ताल्लुक रखना फर्ज आइन है। हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, हमारा सिलसिला खत्म होता जा रहा है। जो हैं वही बड़े, आसमान से उतरने वाले नहीं, जो हैं आज वो बड़े हैं। अपने आप को उनसे जोड़ के रखें, आजाद अपने आप को न रखें, आजाद नहीं रहना है। एक निजाम के तहत अपने आप को दुरुस्त रखना, और नीयत हमारी सालेह हो और दुरुस्त हो। हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम थे। सहारनपुर तशरीफ लाए और रायपुर जाना था। हजरत रायपुरी के यहाँ यह तरीका था कि जो भी रायपुर आए वो सहारनपुर हो करके आए। अब अगर रायपुर गया और सहारनपुर नहीं आया तो झूठ तो बोल नहीं सकता, और बिना मिले हुए गया हुआ तो हजरत नाराज होंगे, जवाब क्या देगा। तो मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। जब चलने लगे तो कहने लगे, मौलवी ज़करिया एक सवाल है, मैं उसे तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, 3 दिन के बाद वापसी होगी, 3 दिन के बाद जवाब चाहिए। हजरत ने फरमाया कि इरशाद फरमाइए। जा रहे हैं रायपुर, तशरीफ फरमाए सहारनपुर में। फरमाने लगे कि ये जो जब देखो तसव्वुफ, जब देखो तसव्वुफ, ये तसव्वुफ कौन सी बला है, क्या मुसीबत है तसव्वुफ, इसका मुझे जवाब चाहिए 3 दिन के बाद। हजरत शेख नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने इरशाद फरमाया कि हजरत 3 दिन तो बहुत देर में आएंगे, ताजा जवाब मैं आपको देता हूं अभी इसी वक्त, आप ताजा जवाब लेते जाइए। मौलाना हबीबुर रहमान साहब खड़े हो गए कि मौलवी ज़करिया ये कहेंगे तो मैं ये कहूंगा, वो ये कहेंगे तो मैं ये कहूंगा। हजरत ने फरमाया कि तसव्वुफ का नाम है तस्हीह नियत, समझ रहे? तस्हीह नियत का नाम तसव्वुफ है। हम मदरसा क्यों चला रहे हैं, हम जमीयत उलमा से क्यों वाबस्ता है, हम जमातों और खानकाहों में क्यों हैं, हमें अपने आप को दुरुस्त करना, अपने आप को दुरुस्त करना। अल्लाह के हुजूर रोना, रोने की आदत खत्म हो गई। उठते नहीं, मोबाइल उठने ही नहीं देता, देर में सोते हैं देर में उठते हैं, देर से सोते हैं देर से उठते हैं। और असातिज़ा को माफ कीजिएगा, एक बड़ी तादाद हमारी ऐसी है कि उनको ये पता ही नहीं कि हम बच्चों क्यों पढ़ा रहे हैं, उन्हें ये मालूम ही नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं। ना तरबियत की तरफ ख्याल है, ना नमाज की तरफ ख्याल है, ना इस्लाह की तरफ तवज्जो है, आजाद है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आएगी,
हर हाल में आएगी, इन्हीं में निखार आएगा और फिर दूसरे लोग खड़े होंगे। तो आप इसका इंतजार क्यों कर रहे हैं कि दूसरे लोग खड़े हों? जब मदारिस की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको पैदा कर दिया और ये नेमत आपके हिस्से में आ गई है, तो आप कमर कस लीजिए, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होइए, मेहनत और कोशिश करिए और अपने आप को रुजू इल्लल्लाह, रातों को रोइए, दिन में मेहनत कीजिए। दिन में मेहनत कीजिए, भाग दौड़ की जितनी शक्लें हैं, अपनी सेहत के एतबार से भी और जाहिरी एतबार से, बातिनी एतबार से अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो के अल्लाह से मांगिए। परेशानियों का जिक्र तो हर वक्त सुनते ही रहते हैं, और जब से ये हालात पैदा हुए हैं मदारिस के, कई मरतबा यूपी, जो मगरबी यूपी का इलाका है, एक जिम्मेदार राब्ते मदारिस के सदर हैं, कई मरतबा मुझसे उन्होंने कहा कि 2-3 जिलों में कागज पे बहुत आला दर्जे के मदरसे हैं, जमीन पे तलाश कर रहा हूं, मिल नहीं रहे। अगर आप चाहें तो मैं नाम दे दूं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, जानबूझ के नाम नहीं बतला रहा हूं। कागज पे बहुत आला दर्जे के मदरसे मौजूद हैं, लेकिन जमीन पे तलाश कर रहा हूं, मदरसे मिल नहीं रहे। और राब्ते मदारिस अरबिया दारुल उलूम देवबंद के राब्ते में है और उनको सनद मिली हुई है, और माशाअल्लाह वो इंग्लैंड में चंदा कर रहे हैं। और हम लोग क्योंकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वगैरह की तस्दीक लोग मांगते हैं, जमीन पे नहीं मिल रहा। वो मदरसा कहाँ? एक बड़े आलिम, बड़ा मदरसा, मदरसा खादिमुल इस्लाम बागो वाली मुजफ्फरनगर, उसके मोहतिन साहब ने मुझसे फरमाया कि मेरी मस्जिद में 8 लोग मुशर्रा आए और उन्होंने चंदा किया, और मैं उनके इदारे को तलाश कर रहा हूं, मुझे उनका मदरसा मिला नहीं। वो कहाँ है मुजफ्फरनगर के लोग। और वो बात कारी शौकत साहब ने कही थी, जो राब्ते मदारिस अरबिया मगरबी यूपी के सदर हैं, कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कागजात पे बहुत सारे मदरसे हैं, दारुल उलूम देवबंद के राब्ते में है, और मैं तलाश कर रहा हूं, मुफ्ती बिन यामीन को फला फला को लगा रखा हूं, मदरसा मिल नहीं रहा। समझ रहे हैं? लेकिन बहरहाल मदारिस तो मदारिस ही हैं। अभी जिन मदरसों पे हालात आए हैं वो आपके लिए किले के मानिंद हैं। अगर वो उखड़ गए तो बड़े मदरसे महफूज नहीं रहेंगे, आप समझ लीजिए। तो उन किलों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आप खड़े होइए, ये मत सोचिए कि उनका है तो उनको करने दीजिए, जब आएगा तब देखेंगे। नहीं, जहां भी है जिनके साथ जो हालात है, उनके लिए आपको उसी ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अल्लाह कामयाबी देंगे इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों में से एक नेमत है, इनाम है। वालिदैन को उतनी फिक्र नहीं अपनी औलाद की, और वालिदैन को अपनी औलाद को एक बकरी की जितनी फिक्र है, अपनी नस्लों की फिक्र नहीं। माफ कीजिएगा, जमीयत उलमा अपनी क़यादत की मौजूदगी में हर एतबार से हर मामले में फिक्रमंद है कि इदारा, बच्चे, निज़ाम, स्कूल, कॉलेज, सेहत, मेरा बच्चा सेहतमंद भी हो और नफाबख्श भी हो, कारामद भी हो, और हर एतबार से वो कामयाब हो। तो जमीयत उलमा ने पहले भी और आज भी पूरी तैयारी के साथ आप जाइए, जो हमारे साथियों ने जिक्र किया है, कागजात लेके जाइए। हिम्मतनगर गुजरात से मेरे पास फोन आया एसओजी का कि यहाँ जो मकातिब चल रहे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ है। तो मैंने कहा मैं तो कई रोज से आपका इंतजार कर रहा था, बहुत अच्छा हुआ आपका फोन आ गया। ये ट्यूशन के मानिंद हैं, मकातिब जो पढ़ाए जा रहे हैं, ये बाज़ाब्ता मदारिस की शक्ल नहीं, ये मकातिब इनके होमवर्क कराए जाते हैं, ट्यूशन की तरह से नहीं समझ लीजिए। ये बच्चे आते हैं, घंटा 2 घंटा पढ़ते और चले जाते हैं। अच्छा ऐसा मतलब? हाँ, कहा बहुत अच्छा। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, हिम्मतनगर गुजरात में, बनासकांठा साबरकांठा जिले से। तो चूंकि हमारी तरबियत नहीं है, हम लोग फौरन होस्टाइल हो जाते हैं, घबराहट पैदा हो जाती। इत्मीनान के साथ बात कीजिए, बात में संजीदगी होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, और बात में यह ख्याल नहीं पैदा होना चाहिए कि हम मदरसे वाले
या हम मुसलमान इस वजह से मेरे साथ ऐसा मामला कर रहे हैं, नहीं। आप उनके सामने मुस्कुराते रहिए और दलाइल पेश कीजिए, कागजात की रोशनी में अपनी बात को रखिए जहां जरूरत हो। इसी वजह से हर जिले को चंद अजला से, फिर उन चंद अजला को सूबे से, सूबे को मरकज से, जमीयत उलमा ने लीगल तौर पर भी एक नंबर, एक वकील साहब हमारे बहुत सरगर्म हैं, उनका नंबर भी कल जारी किया गया, वो आपके पास होगा। तो आप रात दिन 24 घंटे आपके पास कोई साहब आए, आप इत्मीनान से बात कीजिए, अफसरान से मिलिए, लेकिन खुशामद मत कीजिए। अफसरान से बातचीत करने का मतलब यह है कि अपनी बात को सही रखिए, उनकी खुशामद अपन ने समाजत नहीं करनी। आप इत्मीनान से अपने मामलात को, बात को रखिए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बादल छटेगा। सर्दियों में बकौल सदर मोहतरम के कि रात लंबी होती लेकिन सूरज निकलता है, और गर्मियों में दिन बड़ा होता है लेकिन सूरज डूबता है। तो सूरज डूबेगा भी, सूरज निकलेगा भी, बशर्ते कि हम और आप इसके लिए अज़्म और हौसले के साथ तैयार हो जाएं कि अल्लाह ने ईमान अता फरमाया, इस मुल्क में तखलीक फरमाई, हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पैदा फरमाया, ऐसे अकाबिर के साथ हमारी वाबस्तगी फरमाई, और ऐसे दीनी इदारों की जिम्मेदारियां हमें दी। हमें अपनी नस्लों की हिफाजत करनी है और हर एतबार से अल्लाह ताला से हमें अपने आप को रुजू करना है। अगर मान लीजिए किसी वजह से सुबह आप नहीं उठ पा रहे, रात छोटी, तो सुबह रात को सोने से पहले, रात को बिस्तर में जाने से पहले वजू कर लीजिए, और वजू करके 4 रकात तहज्जुद की नियत से नमाज आप पढ़ लें, इंशाअल्लाह वही सवाब आपको मिलेगा जो तहज्जुद में उठने के मिलेगा। जब आप पाबंदी करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह उसी हिसाब से आपको सुन्नत पे अमल करने के एतबार से आपको हौसला मिलेगा। हमें जिससे ताल्लुक होता है उसकी जिंदगी को इख्तियार करना होता है। हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमें मोहब्बत और आपके तरीक़े को हमें इख्तियार करना है। हम बावजूद सोए, सुन्नत के मुताबिक लेटे, मिसवाक का एहतमाम करें। मैंने 17 साल कमोबेश फिदाए मिल्लत अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ सफ़र किया। मुझे आज जमीयतुल में 36 साल हो गए रहते हुए, काम करते हुए, और मेरी ज़िंदगी भागलपुर के फसाद से 1989 से शुरू हुई, जब मैं दारुल उलूम देवबंद से फारिग होकर के वहीं मौजूद था। मौलाना असजद साहब और मौलाना मतीउल हक हम सब साथियों में थे। चाहे वो रात को 2 बजे लेटे, चाहे रात को 12 बजे, चाहे ट्रेन में हो, चाहे घर में हो, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि उनकी तहज्जुद फौत हुई हो। और अगर जुमा है और ट्रेन में है या कहीं मेहमान है, तो रात में कह देते थे कि भाई सुबह को जुमा है, फजर की नमाज में सूरे अलिफ लाम मीम सजदा और सूरे दहर पढ़ना होगा, इमाम साहब को बता दो। हजरत थानवी अलैहिर्रहमा मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका नाम आता है तो अहया सुन्नत के ताल्लुक से हमारे रोकते खड़े हो जाते हैं। शेखुल इस्लाम, शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी नव्वरल्लाहु बरकतहू तशरीफ ले गए। फजर की नमाज हजरत उनसे पढ़वाई, जुमा था। कुछ लोग सजदे में चले गए, कुछ लोग रुकू में चले गए, कुछ लोगों को नागवारी हुई। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा जहन इधर मुंतकिल नहीं हुआ था। हजरत मदनी ने जो नमाज आज पढ़ाई है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने, मैं मानता हूं कि मेरी सारी नमाजें, मुझे यकीन है कि इस नमाज की बरकत से जो सुन्नत मुताबिक नमाज हुई है, सारी नमाजें हमारी कबूल कर ली जाएंगी। और एक बात मैं अर्ज करता हूं, मेरी मालूमात में बुजुर्गों में 2 लोग ऐसे हैं, हो सकता है और भी हो, कि हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी किस नमाज में, किस दिन और कौन सी सूरत की तिलावत फरमाते थे, उसके ऐन मुताबिक वो नमाज उसी तरह से पढ़ते थे। उनमें से एक शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी और दूसरे मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद। मुफ्ती भी
मुफ्ती आजम पाकिस्तान भी थे और सरहद के चीफ मिनिस्टर भी थे। बारहा मेरा चूंकि एक सफर हुआ वहां इजलास में, तो एक पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि हम लोग जब मुफ्ती साहब के साथ होते थे तो हमेशा बावजू रहते थे, पता नहीं कहां नमाज वक्त हो जाए और मुफ्ती साहब मुसल्ला बिछा दे। हजरत मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब से वालिद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए कि हजरत मेरा काम है, आप चले चले। हजरत ने फरमाया चले, लेकिन ज़ोहर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लें। और उनका मेरा वजू नहीं। मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब से वालिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि आज के हालात में भी मुसलमान बेवजू रहेगा। तिलावत हम नहीं करते, सुन्नत के पाबंद हम नहीं हैं, बावजू हम नहीं रहते, और रुजू इल्लाह हमारा नहीं, हम कमजोर होते जा रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, आपसे शिकायत नहीं, लेकिन हम सबको अपने आप को दुरुस्त करना। हजरत फिदाई मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की 44 साल जिंदगी मदारिस का राब्ते मदारिस अरबिया और बहुत सारी चीजें उनकी कोशिशों का हिस्सा। उनके लेटने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं था, लेकिन उठने का वक्त मुतय्यन था। अपने आप को ढालना होगा, ढालिए, अल्लाह से रोइए, अल्लाह की मदद आएगी। आखिरी बात, माल्टा के जेल में थे हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। सुन्नत से ऐसा इश्क और ताल्लुक था कि जब जुमे का दिन होता तो सुबह से जुमे की तैयारी करते, और जुमे की तैयारी करते 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 जब जुमे का वक्त हो जाता तो जिस तरह से आप शहर में रहते हुए जुमे की तैयारी करते, हजरत तैयार होकर के माल्टा के दरवाजे पे आके खड़े होते थे और आसमान की तरफ नजर उठाते थे, फरमाते थे इलाहुल आलमीन मेरे बस इतना ही है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो इतना तो हम कर सकते हैं ना, कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, देने वाली जात तो अल्लाह की है। नाम तो हम ले रहे हैं लेकिन अमल नहीं। तो इन बुजुर्गों की कुर्बानियों की बरकत से इंशाअल्लाह हमें वो हौसला और जज्बा मिलेगा। और अकाबिर ने, एक बात और सुन लीजिए अच्छी तरह से, अकाबिर ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप सब झुका सके। इनकी जिंदगियां हमारे लिए नमूना है। इन्होंने हर वो काम किया है जिससे आप सब उठा करके सीने पे हाथ रख करके ये कह सकते हैं कि हमारे अकाबिर की कुर्बानियों और उनकी बरकत से ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, हम इसके किराएदार नहीं। और ये तकरीर नहीं, मुझे तकरीर आती नहीं, मैं तो मरीज आदमी हूं, ऐसे भी हूं। मौलाना ने भी जिक्र भी किया, मैं अपनी बीमारी वगैरह का जिक्र नहीं करता हूं, लेकिन मौलाना ने जिक्र कर दिया था। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूं, कोई बनावट नहीं है। जब से मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लेटता हूं, सो जाता हूं, कभी अलार्म नहीं लगाता, न ट्रेन में न घर में उठने के लिए, जब चाहे सो जाए, जब चाहे उठे। लेकिन जब से मदारिस का खास तौर से श्रावस्ती और बहराइच वगैरह के इलाकों में हालात सुने, अक्सर ऐसा होता है कि करवट बदलते बदलते रात पूरी हो जाती। और इतना लोगों के टेलीफोन आते हैं, टेलीफोन, एक बात समझ लीजिए मुफ्ती कासिम रजी साहब, आपसे गुजारिश है, और जो कन्वीनर हजरात हैं, आपके पास अगर किसी का भूल करके भी टेलीफोन आ जाए तो आप कॉल बैक करिए। मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले फोन चेक करता हूं, कोई अहम मामला पेश आ गया हो, किसी का फोन आ गया हो, तो कोई आदमी आपको फोन कर रहा है तो उसे आप महरूम मत कीजिए। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझे और जरूरत पे वो मशवरा करे। अल्लाह ताला इस इदारे की जरूरतों को गैब से पूरा फरमाए, तमाम इदारों की जरूरतों को अल्लाह ताला पूरा फरमाए, और हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। और अपने कागजात को अब दुरुस्त कराइए। जमीयत उलमा ने बेपनाह लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 1074 मुकदमात आज की तारीख में है, उसमें आसाम की शहरियत भी है और फला फला है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, वापस हाई कोर्ट में जा रहा है, वापस किया। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन कायम फरमाए, बदअमनी से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। हम लोग 24 घंटे आपके लिए हाजिर है। हम सब का अपना, हमारे अकाबिर ने इस मुल्क में 3 निज़ाम बनाए, 3 निज़ाम बनाए, तीनों की हिफाजत जरूरी। मदारिस अरबिया, दारुल उलूम देवबंद और उसके नहज पे चलने वाले इदारे जितने भी मदारिस हैं, एक अजीब अल्लाह की शान है।
कि दारुल देवबंद का कोई राब्ते का निज़ाम नहीं, लेकिन सब लोग दारुल देवबंद से जुड़े हुए हैं, चूंकि ये एक तहरीक है। दारुल देवबंद एक इदारा नहीं, एक तहरीक है। उस तहरीक से दुनिया में लाखों लोग, दुनिया के लाखों इलाकों में दारुल देवबंद का फर्जंद फैला हुआ और काम कर रहा है। दूसरी तहरीक अल्लाह ताला ने इन्हीं के जरिए से जमात तबलीग के निज़ाम को, और तीसरा निज़ाम अकाबिर ने, इसको पहला भी कह सकते हैं, अकाबिर ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी और फिर इदारों को बनाया, वो मुआमिन और मुहाफिज जमात है, जिसको जमीयतुल उलमा हिंद कहते हैं आज की तारीख में। इससे वाबस्तगी हमारे लिए ये अल्लाह का इनाम है, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए, मेज़बान हजरात ने बड़े जज्बे के साथ खिदमत की, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। आपने लंबा सफ़र किया, आपकी आमद को अल्लाह कबूल फरमाए। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, जो कुछ कहने सुनने में ज़्यादती हुई हो उसे आप माफ़ फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरी गुजारिश, मैंने जिक्र किया कि दारुल का पहला उस्ताद महमूद, दारुल का शागिर्द पहला महमूद, आज भी हमारे पास महमूद मौजूद है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज भी हमारे पास महमूद मौजूद है, हमें जम करके खड़ा होना है। इंशाअल्लाह वही फतूहात हमें हासिल होंगी जो दौर अव्वल के महमूद से हासिल हुई थी, तो इंशाअल्लाह हम सबको मकाम महमूद मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।